everyone. We are doing Unit 3 of Macroeconomics. In this video, we are doing some important numericals of Chapter 8, that is Income Determination and Multiplier. In the end of this video, I will give you some important numericals for practice and try to do those and tell me your answers in comment section. And if you have any type of doubt, you can ask me. Now let's start some important numericals of Chapter Income Determination and Multiplier. We are doing important numericals by using these formulas. These are K is equal to change in Y over change in I. K mean to say multiplier. Multiplier is equal to क्या होता है? Change in Y over change in I. K is equal to 1 upon 1 minus MPC and K is equal to 1 upon MPS. And MPC is equal to change in C over change in Y and MPS is equal to change in S over change in Y. At equilibrium level, AD is always equal to AS and saving is always equal to investment. And C mean to say consumption. We can say that consumption function that is equal to C bar यानी autonomous consumption plus MPC into Y. इसी तरह से saving is equal to minus S plus MPS into Y. इसी तरह से Y is equal to C plus S. इनका हमेशा कंजप्शन और सेविंग का क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है. एंड चेंज इन Y हमेशा किसके इक्वल होगा? चेंज इन C प्लस चेंज इन S. एट इक्विलिब्रियम लेवल जो इनकम है वो किसके इक्वल होगी? C प्लस I के. बिकॉज ये सेविंग इक्विलिब्रियम लेवल पे किसके इक्वल होती है? इन्वेस्टमेंट के. तो हम यहाँ पे सेविंग की जगह पे क्या लिख सकते हैं? इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं. फिर चेंज इन Y इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन C प्लस चेंज इन I. Now we are doing first question, that is very easy. Calculate multiplier. Calculate K if MPC is 0.75 and MPS is 0.40. So we are using second formula here because MPC हमें given है. तो K is equal to क्या होगा? K is equal to 1 upon 1 minus MPC. K is equal to 1 upon 1 minus MPC. 1 minus, put the value of MPC, that is 0.75. Now subtract it from 1, that is 0.25. K is equal to 1 upon 0.25 and solve it. 25 4s are 100. K is equal to क्या होगा? 4. Mean to say multiplier is 4. When MPC is 0.75, K is equal to 4. Now we are doing second part, that is we have to find out MPS, we have to find out K using MPS is equal to 0.40. Now we are using this formula, K is equal to 1 upon MPS. K is equal to 1 upon MPS. Now K is equal to 1 upon MPS. MPS is 0.40. Now solve it. 1 upon 100 upon 440. Now cut it. That is 5 upon 2. 5 upon 2 mean to say 2.5. So K की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 2.5 when MPS is equal to 0.40. This is our first question. Now we are doing second question. In an economy, income generated is 4 times the increase in investment expenditure. Calculate MPC and MPS. तो हमें given क्या है यहाँ पे? Income generated is 4 times the increase in investment. Mean to say जो income में change आता है that is equal to 4 times of change in investment. Change in investment. Change in Y, अगर हम ये चेंज इन आई को इधर ले आए तो ये हो जाएगा चेंज इन वाई ओवर चेंज इन आई, दैट इज इक्वल टू 4. चेंज इन वाई ओवर चेंज इन आई किसके इक्वल होता है? के के. तो इसका मतलब हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है? 4 है. के इज इक्वल टू 4 बिकॉज चेंज इन वाई ओवर चेंज इन आई किसके इक्वल होता है? के. तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी हो गई? 4. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ MPC एंड MPS. सो we know that K is equal to 1 upon 1 minus MPC and we have value of K
that is 4, 4 upon 1, 1 upon 1 minus MPC. Now cross multiply it. 4 into 1 minus MPC is equal to 1. Now solve it. Open the bracket. 4 minus 4 MPC is equal to 1. Minus 4 MPC is equal to 1 minus 4. 1 minus 4. ये वाले 4 राइट हैंड साइड में जाके -4 हो जाएंगे. -4 MPC इज इक्वल टू -3. माइनस माइनस से कट हो जाएगा. तो 4 MPC है यहाँ पे हमारे पास. 4 MPC is equal to 3. We have to find out the value of MPC, that is equal to 3 upon 4. MPCs के साथ 4 जो है वो मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो MPC is equal to 0.75. MPC is equal to 0.75. We know that sum of MPC and MPS is equal to 1. If we have to find out the value of MPS, subtract MPC from 1. MPS is equal to 1 minus 0.75. So MPS is equal to 0.25. So we have these values. MPC is equal to 0.75 and MPS is equal to 0.25. Third question is, in an economy, 75% of increase in income is spent on consumption and the investment is increased by 1000 crore. Calculate total increase in income. Second, total increase in consumption expenditure. तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड टोटल इंक्रीज इन कंजप्शन. टोटल इंक्रीज इन इनकम मीन टू से वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन वाई एंड सेकेंडली टोटल इंक्रीज इन कंजप्शन मीन टू से वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन सी. सो चेंज इन वाई जो है यानी चेंज इन इनकम जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे गिवन क्या है, 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन. Mean to say this is MPC, marginal propensity to consume, that is 75%. परसेंटेज है तो परसेंटेज हम रिमूव कर सकते हैं. सो MPC is equal to 75 upon 100. Mean to say MPC is 0.75. Now MPC हमें गिवन है तो हमें चेंज इन Y फाइंड आउट करना है. चेंज इन Y हमें यहाँ पे मिल सकता है और यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो हम पहले सॉल्व करेंगे. K की वैल्यू के लिए हमें क्या यूज करना होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा बस बिकॉज हमें MPC पता है, MPC हमें गिवन है. K इज इक्वल टू 1 upon 1 माइनस MPC. सो ये आ जाएगा K इज इक्वल टू 1 upon 1 माइनस 0.75. सो दैट इज इक्वल टू 1 upon 0.25. नाउ सॉल्व इट. K इज इक्वल टू पॉइंट रिमूव कर लेंगे 100 upon 25. 25 4s are 100. सो K इज इक्वल टू 4. K की वैल्यू 4 आ गई है. अब इस वैल्यू को यूज करके हमने चेंज इन Y निकालना है. चेंज इन Y जो है हमें चेंज इन I गिवन है, दैट इज चेंज इन I इज 1000 crores. सो चेंज इन I इज 1000 crores. So multiplier is equal to change in Y over change in I. Change in जो हमारे पास multiplier है that is 4. 4 वैल्यू यहाँ पे आ रही है तो वो हम यूज करेंगे. change in Y हमें फाइंड आउट करना है एंड change in I हमें गिवन है 1000. Now cross multiply it. So change in Y is equal to 4000 crores. So this is our first answers. इंक्रीज इन इनकम जो है वो कितना है 4000 करोड़. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन सी. चेंज इन सी फाइंड आउट करना है हमें, कंजप्शन में कितना चेंज आया है. तो ये हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं और ये हम MPC वाला फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं. दोनों फॉर्मूलाज यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला. MPC इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हमें. सो हमें फाइंड आउट करना चेंज इन सी.
So I'm using here MPC is equal to change in C over change in Y. So MPC की वैल्यू हमारे पास 0.75 है और चेंज इन C जो है वो फाइंड आउट करना है. चेंज इन Y जो है वो आया है हमारे पास 4000. अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो चेंज इन C कितना आएगा. चेंज इन C इज इक्वल टू 4000 इंटू 0.75. तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन C इज इक्वल टू कितना होगा 3000 crores. सो दिस इज आवर सेकेंड आंसर. Change in Y is equal to 4000 crores and change in C is equal to 3000 crores. Fourth question is given. हमें given क्या है. Consumption function that is equal to C is equal to C bar plus 100 plus 0.75. It is given to us and investment expenditure is equal to 1000 crores. Calculate equilibrium level of national income. Mean to say Y की value find out करनी है. Secondly, consumption expenditure at equilibrium level of income. Mean to say उसी income level को use करके हमने consumption निकालनी है. तो first of all we have to find out national income. Mean to say Y at equilibrium level. So national income यानी Y जो होती है at equilibrium level पे वो किसके इक्वल होती है. That is equal to Y is equal to C plus I. जनरली जो income होती है वो किसके इक्वल होती है C plus S के. लेकिन जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पे होती है तो हमेशा इनकम जो होती है वो किसके इक्वल होती है C प्लस आई. सो वी आर यूजिंग Y इज इक्वल टू C प्लस आई. Y इज इक्वल टू C प्लस आई. ये फॉर्मूला यूज करके हम जो इनकम की वैल्यू निकालेंगे नेशनल इनकम की एट इक्विलिब्रियम लेवल. सो Y इज इक्वल टू C की वैल्यू यहाँ पे गिवन है. हमें कंजप्शन फंक्शन गिवन है दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 Y. 100 plus 0.75 Y and investment is given to us that is 1000 crores. Now Y is equal to 0.75 जो है वो राइट हैंड साइड पे है तो हम यहाँ पे 1Y ले सकते हैं. 1Y में से 0.75 Y जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये 1000 प्लस 100 कितना हो जाएगा 1100. नाउ 1Y minus 0.75 Y that is 0.25 Y is equal to 1100 and Y is equal to 1100 upon 0.25. Now calculate it, solve it. 1100 into 100 point remove कर दिया हमने over 25 fours are 100. So national income is 4400 crores. So income is 4400 crores at equilibrium level. Now we have to find out consumption expenditure at equilibrium level of income. Consumption expenditure mean to say consumption function use करेंगे. C is equal to C bar. Mean to say ये हमें given ही है that is 100 plus 0.75 Y. National income जो हमने 4400 solve की है वही हम यहाँ पे values की put करेंगे. 100 plus 0.75 Y that is 4400 crores. 100 plus 0.75 into क्या करना है हमने 4400 that is equal to 3300. So consumption is equal to consumption expenditure is equal to 3400 crores. Consumption expenditure is equal to 3400 crores at equilibrium level of income that is 4400 crores. I think so आपको ये क्लियर हो रहा है. अगर नहीं भी क्लियर हो रहा है तो you can ask me in comment section. Question number 5 is the equilibrium level of income in an economy is rupees 5000 crores and autonomous consumption यानी C bar is equal to rupees 250 crores and investment is equal to 1000 crores. Calculate. First find out करना है consumption expenditure at equilibrium level of income. Consumption expenditure at equilibrium level of income. Second हमें find out करना है MPS. Third find out करना है saving function and fourth find out करना है K value of K यानी multiplier and fifth question हमने find out करना है break even level of income. तो इस question में हमें 5 things find out करनी है. तो firstly हमें given क्या है equilibrium level of income in an economy is rupees 5000 crores. Mean to say Y is equal to 5000 crores हमें given है
एंड सी में से जो कंजप्शन इक्वेशन होती है उसमें सी बार जो है वो हमें ऑटोनॉमस कंजप्शन वो हमें 250 करोड़ गिवन है और इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है हमें 1000 करोड़। वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट जो है वो हमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। वी नो दैट जब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पे होती है तो हमेशा इनकम जो होती है वो C प्लस आई के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? C प्लस आई के। तो यहाँ पे इनकम हमें गिवन है दैट इज 5000 करोड़ एंड कंजप्शन हमें फाइंड आउट करना है। इन्वेस्टमेंट भी हमें गिवन है दैट इज 1000 करोड़। सो यहाँ पे कंजप्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5000 में से 1000 माइनस कर दें तो कंजप्शन कितनी आ जाएगी? 4000 करोड़। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो कितना आएगा एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दैट इज इक्वल टू ₹4000 करोड़। सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज फाइंड आउट एमपीएस। हमें एमपीएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एमपीएस की वैल्यू यहाँ पे कैसे आ सकती है? एमपीएस फाइंड आउट करना है हमें। तो एमपीएस के लिए हमें सबसे पहले जो है क्या देखेंगे, हम के से भी निकाल सकते हैं लेकिन के के लिए हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। फिर हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम ये सी फंक्शन को सॉल्व कर ले, पहले सी फंक्शन को सॉल्व कर ले, यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी। एमपीसी से हमारे पास क्या आ जाएगा? एमपीएस आ जाएगा, क्योंकि एमपीसी और एमपीएस का रिलेशनशिप यानी एमपीसी और एमपीएस दोनों प्लस करके किसके इक्वल होते हैं? 1 में से 1। तो 1 में से हम एमपीसी की वैल्यू माइनस कर देंगे, हमें एमपीएस मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एमपीएस सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सॉल्विंग अबाउट कंजप्शन इक्वेशन, कंजप्शन फंक्शन दैट इज सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। सो सी की वैल्यू यहाँ पे कंजप्शन की वैल्यू 4000 करोड़ है, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे 4000 एंड सी बार हमें 250 गिवन है, पुट कर ली। एमपीसी हमें फाइंड आउट करना है और इनकम लेवल जो है, इनकम लेवल कितना है? 5000। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 4000 में से 250 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3750 इज इक्वल टू एमपीसी इंटू 5000। सो यहाँ पे देखिए एमपीसी के साथ 5000 क्या है? मल्टीप्लाई है, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो एमपीसी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 3750 ओवर 5000। इसको आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.75। जब इसको डिवाइड करेंगे 375 को 500 के साथ तो एमपीसी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 0.75। हमें फाइंड आउट करना है एमपीएस। एमपीएस किसके इक्वल होता है? 1 माइनस एमपीसी। सो यहाँ पे 1 माइनस 0.75 कर देंगे तो एमपीएस की वैल्यू 0.25। एमपीएस इज इक्वल टू 0.25। सेकेंड आंसर। थर्ड वी हैव टू फाइंड आउट सेविंग फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन से हमें सेविंग फंक्शन में कन्वर्ट करना है, बहुत इजी है। सेविंग फंक्शन किसके इक्वल होता है? माइनस एस प्लस एमपीएस इंटू वाई। ये हमारा सेविंग फंक्शन है, तो एस इज इक्वल टू माइनस एस हमेशा सी बार के इक्वल होता है। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम यानी ऑटोनॉमस कंजप्शन हमेशा नेगेटिव सेविंग से इक्वल होता है। तो यहाँ पे सी बार ₹250 है, तो हमारे पास ये माइनस 250 हो जाएगा। प्लस एमपीएस की वैल्यू हमारे पास आई है 0.25 y. This is our saving function and third answer. Now we have to find out k, value of k. Value of k जो है, अब हमारे पास MPS है तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। k is equal to क्या होता है? k is equal to 1 upon MPS. k is equal to 1 upon MPS, 1 upon 0.25. सो k इज इक्वल टू क्या होगा? पॉइंट रिमूव करके 100 हो गया, 125 से कट गया तो k इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। मल्टीप्लायर की वैल्यू 4। अब जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट करनी है। ब्रेक इवन लेवल कब होता है? जब कंजप्शन हमेशा इनकम के इक्वल होती है। ब्रेक इवन लेवल पे क्या होता है? कंजप्शन हमेशा इनकम के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमें c इज इक्वल टू वाई, तो y फाइंड आउट करना है हमें। तो c हमें गिवन क्या है? जो कंजप्शन इक्वेशन थी हमारी वो क्या थी? वो है हमारे पास c बार प्लस एमपीसी इंटू वाई।
सो ये आ जाएगा हमारे पास C इज इक्वल टू सी बार प्लस MPC इंटू वाई। सी बार हमारे पास कितना है 250, MPC 0.75, वाई कितना है 5000। तो यहाँ पे हमें y को एज इट इज रखना है, तो यहाँ पे c की जगह पे हम y लिख लेते हैं। c की जगह पे क्या लिख लेंगे y, क्योंकि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम फाइंड आउट करना है। तो 1y में से 0.75y माइनस कर देंगे, 0.25y इज इक्वल टू 250 एंड y इज इक्वल टू 250 अपॉन 0.25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसकी पॉइंट मूव कर देंगे। सो y इज इक्वल टू 250 इंटू 100 अपॉन 25। तो ये y जो है दैट इज इक्वल टू 1000 करोड़। सो ₹1000 करोड़ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। स्टूडेंट्स, इट्स योर टर्न नाउ। आई एम गिविंग यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन, try to do these questions. I am giving you some hints with these questions, so let's do it. First question जो है, as a result of increase in investment by ₹125 crores, national income increased by ₹500 crores, calculate MPC. We have given investment, change in investment 125 crores and change in income जो है that is ₹500 crores. It is here. So we can use this formula, K is equal to change in Y over change in I, and ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने से आपको K की वैल्यू मिल जाएगी और K की वैल्यू यूज़ करके आपने MPC की वैल्यू निकालनी है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, K is equal to 1/1 माइनस MPC, तो MPC की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन जो है, फाइंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। C बार इज इक्वल टू ₹100 करोड़ एंड MPC 0.80 एंड इन्वेस्टमेंट इज ₹50। तो यहाँ पे देखिए हमें जो कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन है वो वाली हमने यूज़ करनी है। यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन यूज़ कर लेना। C बार की वैल्यू भी हमें गिवन है, MPC की वैल्यू भी गिवन है और हमें कंजप्शन जो है इन्वेस्टमेंट जो रुपीज़ दी हुई है वो कितनी दी हुई है 50, तो वो हमने यूज़ करनी है। उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, y इज इक्वल टू C प्लस I। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू जो है इनकम की वैल्यू निकाल सकते हो सेकेंड ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके जो मैंने आपको बताए हैं। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन एन इकोनॉमी द कंजप्शन फंक्शन इज कंजप्शन फंक्शन इज C इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75y। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर व्हेन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ₹5000 करोड़। तो हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है, हमें ये C इज इक्वल टू क्या करना है, हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तभी होती है जब C इज इक्वल टू क्या हो, मतलब y निकालनी है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप y इज इक्वल टू C प्लस I कर लेना, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी पुट कर लेना, फिर y की वैल्यू जो है आराम से आ जाएगी। तो अगर y की वैल्यू आ जाएगी तो वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो कंजप्शन की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल्स हैं, आप इनको सॉल्व करना और जो भी इनके आंसर्स हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कोई भी डाउट होगा वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।